community के साथ. I'm also excited very much to be able to participate in a topic which is really very close to my heart. Yes, I've been homeschooling my kids for almost 7 years now. My kids are uh, now 14, 11 and 8. And so जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन मेरे 14-year-old के साथ हुआ है. So, yeah, I'm also an educator, but I really like to call myself a mom first because I think my maximum learnings in life have been with and because of my choosing to homeschool my kids. So this is, mashallah, a wonderful initiative. जैसे सानिया ने कहा कि आजकल होमस्कूलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चर्चा हो रहा है. तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने भी ये टॉपिक को डिस्कस करना था. तो सो आवर होमस्कूलिंग एक्सपेक्टेशंस मैंने अपने प्रेजेंटेशन का नाम रखा है क्योंकि तवक्कुआत ही सब कुछ है जिसकी वजह से हम लोग जो कुछ भी है वो शुरू करते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं. So yes, this is the bright new idea of the year, and this is our new year, and I'm really, really glad that we are all over here. You are over here to discuss this interesting topic. So at this point in this slide, I would request all of you participants to please have a notepad, pen or paper या जो भी है जिसमें आप कुछ notes लिख सके. So why? The very first question is, why are we over here? So this is like, wherever we go something, jahan hum jate hain, to there is something that sparks our interest, you know. तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होती हमसे या एज अ फैमिली या खुद से भी जिसमें we are not, naturally inclined towards or attracted towards. So, because all of us are present over here, I really want all of you to ask yourself, put this why down, that why did you feel attracted to the topic of homeschooling? कि ये topic छेड़ा गया और फिर आप के अंदर ये curiosity क्यों जागी कि आप इसमें participate करें. तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि ये आता है कि आखिर है क्या homeschooling? What is homeschooling after all? So I'm sure this panel today is going to answer a lot of your questions about what homeschooling is. But according to you, at this point of the beginning of our discussion, can you write down just one line of what you think homeschooling is? और उसके बाद में आता है कि अगर आप ऑलरेडी जानते हैं, if you're already on the journey of homeschooling या फिर already you have decided, what is your why? कि आपने क्यों homeschooling चुना है या आप क्यों homeschooling चुनना चाहते हैं? Because there is like a broader why कि homeschooling क्यों किया जाता है, and then there is something called zati why. Why am I interested in homeschooling? और फिर हम ये भी अगर आप ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर कर सकती हैं तो फिर बाद में माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज दैट यू प्लीज राइट डाउन दैट व्हाई डू यू वांट टू होमस्कूलिंग. सो देयर आर थ्री थिंग्स ओवर हियर कि व्हाई आर यू ओवर हियर, व्हाई डिड यू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस टॉपिक और कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू थिंक होमस्कूलिंग इज, एंड व्हाट इज योर पर्सनल व्हाई. इफ यू हैव ऑलरेडी if you already have कि आपके जहन में ऑलरेडी क्लैरिटी है कि आप ये क्यों करना चाहती हैं, प्लीज राइट दैट डाउन ऑल्सो. और फिर हमारे पास ये सवाल आता है कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या हम एज अ फैमिली यूनिट ये होमस्कूलिंग जो है, while over here I'll just like to take this opportunity to quickly have a technical definition of homeschooling. Homeschooling is an alternative approach, अलग, different homeschooling approach to education where parents take direct responsibility for their child's learning,
rather than enrolling them in a traditional school. Homeschooling allows for a personalized, यानी कि अपनी ज़ाती choices के हिसाब से flexible and faith-based educational experience tailored to the child's needs, interests, and family values. This is a very, very broad definition of homeschooling, which I hope will not interfere with or probably align with what you have written. So, there is a question कि क्या मैं कर सकती हूँ, कि हमारी फैमिली ये कर सकती है? और फिर जाकर ये सवाल आता है कि after you have answered these questions, why, what, what is your personal why? क्या मैं कर सकती हूँ? तो कैसे करना है? Yes. So the reason I have put how will, of course, open up a lot in the further discussions, but truly a lot of us really focus on the how before the why. But I think after having spent close to 7 years homeschooling my kids, the why is the most important over here. And on this note, I'd like to read this quote I have written over here, ki, I will have high expectations of you, but you should also have high expectations of me. उर्दू में ये कह के मैं आपसे आला तवक्को रखती हूँ और आपको भी मुझसे आला तवक्को रखना चाहिए. So when we are embarking on a homeschooling journey, obviously we are looking for something different. We are not looking for the regular of a school. So, here we are asking, ऐसी क्या मुनासिब तवक्कुआत है जो हम एक दूसरे से रख सकते हैं? So over here, which is why homeschooling is actually a verb. I mean, of course, there is an ing over here, so obviously it isn't in technical forms, homeschooling, technically an English verb. But just look at the contrast over here, that school is a noun. कि school हम बच्चों को भेजते हैं, वो एक जगह है. It's a place. But homeschooling is something where you are going to be thrown right in the middle of action. Every single thing is now going to take place right under your eyes, in the middle of your living room, study room, playground, whatever it is. Why? Because you are now, if you go back over here, the parents take direct responsibility for their child's learning. So what is responsibility? Responsibility is understood as the ability to respond to different situations with wisdom, integrity, and accountability. कि आप किस तरह से respond कर रहे हैं. Remember, we are talking about homeschooling as a verb, and all of the action is you are going to be responsible for all of the action that is going to take place in your home with your kids right under your umbrella. So this is going to be about making conscious choices and being answerable for our actions. तो ये होमस्कूलिंग जो है ये इतना सिंपल नहीं है कि हमने एक करिकुलम डिसाइड कर लिया, सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लिए या टीचर्स चूज कर लिए और फिर वी आर ऑन आवर पाथ. No, it's not really as simple as that. It is something that we as parents need to be totally aware and present in every single moment of what we are choosing for ourselves and our kids. Because trust me, at this point, for a clarification, trust me, the last thing a child needs at home is a parent who is totally lost, frustrated, agitated, and clueless about the choices they are making. So here, your intention is going to play a huge role as to why you are doing what you are doing, why you are choosing to be on this path, and where you're going to place your attention. Inshallah,
that is where I'm going to end my presentation. I know I'm thrown a lot of questions, but these are the questions that we are going to be answering. There are going to be a lot of technical questions that are going to be thrown at the panel, but this is the broad thinking line of thought that I felt that I should throw out over here before we start embarking on the how. Jazakallah. जज़ाकल्लाह खैर रोमाना, एक अच्छा टोन सेटअप कर देता है फॉर स्टार्टिंग दिस कॉन्वर्सेशन कि हाउ मच एफर्ट इट रिक्वायर्स बीइंग प्रेजेंट. जज़ाकल्लाह खैर. वील मूव टुवर्ड्स नादिया. नादिया, आप अपना एक प्रेजेंटेशन शेयर कर लें और उसके बाद हम लोग थोड़े और टेक्निकल चीजों के बारे में जाएंगे कि हाउ इट इज डन प्रैक्टिकली. नादिया, आपको आवाज आ रही है? आप म्यूट पे हैं. ओह, आई थिंक सॉरी, मैं थोड़े फोकस मोड में कर दी थी तो शायद आप अनम्यूट नहीं कर पा रही होंगे अपने आप को. कैन यू जस्ट ट्राई नाउ अनम्यूटिंग योरसेल्फ? Sorry about that. सॉरी Uh, सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक. no, it's okay. नादिया, आप प्लीज अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करें. नादिया, जी, अस्सलाम वालेकुम. तानिया, एक सेकंड बिफोर मैं शुरू करूं, मुझे बस आपसे एक सवाल करना था. मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो एक्चुअली थोड़ा हाउ को भी एक्सप्लोर करती है, तो आप चाहेंगे कि मैं आधा नो प्रेजेंट नो करूं? नो नो नो, आप पूरा करिए. ओके, ठीक है, सही है. और मेरी उर्दू जितनी मेरे से कोशिश होगी मैं करूंगी, बट प्लीज फॉरगिव मी अगर मैं आगे पीछे स्विच करती रहूं इन लैंग्वेजेस के कोई बीच में. नहीं. बस थोड़े अल्फाज शायद मुझे नादिया नहीं. चाहे वो अमेरिका से इंडिया मूव करी है तो इट इज बट अंडरस्टैंडेबल कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंग्लिश है. राइट. सो शुरू करने से पहले मुझे बस 2 मिनट अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था, बिकॉज मैं सारी मीटिंग्स में शामिल नहीं हुई हूँ. तो मेरा नाम नादिया है, मैं यूएस में पली बड़ी हूँ. और मेरे जस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरी खुद की एजुकेशन के बारे में. मेरे पेरेंट्स ने बेसिकली जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम था उसी में ही मुझे डाला था फॉर the regular education, and for religious education हम लोग संडे स्कूल जाते थे हर संडे को. एंड फिर जो पेरेंट्स घर पे सिखाते थे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन वहाँ से भी मिलती थी. और रिसेंटली हम लोग ने रीलोकेट किया है यहाँ पे, तो जो मैं चीज़ें बोलने वाली हूँ शायद हर किसी को वो एक्सपीरियंस ना रहा हो, मगर आप शायद थोड़ा रिलेट कर सकें. बट मेरी जो और हर इंसान की जर्नी अलग होती है. एक्चुअली जो चीज़ें रोमाना ने बोली हैं और very relevant to what I'm going to say as well, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है why, and एक तो होम स्कूलिंग है क्या, फर्स्ट वो चीज़. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हर इंसान के लिए वो फ़र्क होता है. देयर इज़ नॉट अ सिंगल रेसिपी या एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता. हर इंसान के घर में, हर फैमिली के लिए होम स्कूलिंग फ़र्क लगता है. एंड दैट इज़ द होल पॉइंट कि होम स्कूलिंग इज़ जस्ट दैट. इट इज़ कोई अलग जो हम रेगुलर डे टू डे स्कूलिंग जो हम समझते हैं उससे हट के ये चीज़ है. सो आई गेस मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ा उस पर भी एड्रेस करेगी. बट मेरा खुद का मोटिवेशन कहाँ से आया, मेरे बच्चे लेट हुए थे, तो मुझे मैं खुशनसीब थी कि मैं मेरे अतराफ़ देख सकती थी कि मेरे दोस्त उनके बच्चों को किस तरह पेरेंट कर रहे हैं, वो उनको किस तरह तरबियत दे रहे हैं, बहुत दीन और दुनिया की. और वो उनके बाय प्रोडक्ट क्या है, वो बच्चे किस तरह बड़े हो रहे हैं, उनकी ज़बान कैसे है, उनकी लहजा कैसे है, उनकी जो चीज़ें यूजुअली जब लोग स्कूल का सोचते हैं शायद कभी-कभार वो सिर्फ़ ये सोचते हैं कि वहाँ सिर्फ़ पढ़ाई हो रही है. बट एक्चुअली अगर आप बैठ के सोचें, बच्चों का
पूरा दिन 8 घंटे 8-9 घंटे एक एनवायरनमेंट में होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप 8 या 9 घंटे एक एनवायरनमेंट में गुज़ार रहे हैं, डे इन डे आउट और नॉट 1 साल के लिए मगर एक्चुअली कई सालों तक, राइट? 16 ईयर्स, 17 ईयर्स जो भी आपकी फॉर्मल एजुकेशन है। तो ज़ाहिर-सी बात है उस एनवायरनमेंट से असर तो पड़ेगा। एंड दिस इज़ द थिंग जो मेरे दिमाग में काइंड ऑफ मैं जब बच्चों को देखती थी मुझे होता था कि क्या ये सही तरीका है? ये मेरे लिए सही तरीका है? और मैं खुद जिस तरह टर्न आउट हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी इस तरह टर्न आउट हो या मैं कुछ अलग चाहती हूँ उसके लिए। सो आई थिंक दिस इज़ द मेन थिंग आई वांट टू ड्रिल डाउन। आई हैव अ प्रेज़ेंटेशन मैं आपको अभी वो शेयर करती हूँ। बट वो दिखाने से पहले आई थिंक द कोर इज़ the why. I have to go back to what Ramana said, right? Because the reason why it's important is अगर आपको कोई चीज़ में conviction या दिलचस्पी या passion से कोई चीज़ करनी है तो आपका belief आपकी वजह में बहुत ज़रूरी है। मीनिंग आपका जो रीज़न है या the why behind why you're doing something, the conviction behind it has to be solid. और ये एक individual decision नहीं है because and I will get into this a little bit later, but homeschooling में आपका support system बहुत ज़रूरी है। तो आपके जो spouse है has to be on board. Your spouse and अगर आपके जैसे दूसरे बच्चे हैं या जो भी है, let's say आप बीच में शुरू कर रहे हैं homeschooling, then your other children also need to understand and buy into the reasoning, right? अगर आपके कोई बच्चे नहीं हैं और ये आप आपके पहले बच्चे के साथ शुरू कर रहे हो तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है बिकॉज दैट्स ऑल द चाइल्ड हैज़ नोन। बट ईदर वे आपकी पूरी फैमिली यूनिट को जो वाई है उसके ऊपर बहुत ही बैठ के थोड़ा अमल करना है कि सोचना है कि ओके हम क्यों कर रहे हैं। तो इस ये बात से मैं मेरी प्रेजेंटेशन खोना चाहती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। Sorry. ओके, आप लोग को दिख रहा है? जी। ओके, सो ये टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करना चाह रही थी। व्हाट इज़ होम स्कूलिंग, व्हाई होम स्कूलिंग, observing and choosing a pedagogy, a curriculum selection, creating a learning environment, the socializing piece, and challenges, which of course will come, and assessing the progress. सानिया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ जब 10 मिनट्स हो आप मुझे बता सकती हैं? बिल्कुल। Okay, thank you. So what is homeschooling, right? This is something that Romana did touch on. I just want to emphasize एक दो चीज़ें इसमें। बाज़ दफ़ा लोग overwhelm हो जाते हैं homeschooling के बारे में सोच के कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगी? लाइक मुझे या मेरा प्रोफ़ेशन कोई और चीज़ में है और मैं ये सारे सब्जेक्ट्स किस तरह पढ़ाऊँगी या मैं ये इट्स यूजुअली सोच के लोगों को टेंशन कभी-कभार हो जाती है। तो मैं एक चीज़ एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ में अकेले नहीं हैं बिकॉज़ आजकल पहले ज़माना अलग था, शायद रिसोर्सेज़ इतने नहीं थे। अब माशाल्लाह होम स्कूलिंग का ट्रेंड बोलो या जो भी है इंटरेस्ट, इट देयर हैज़ बीन एन explosion basically of the amount of resources and the amount of people doing homeschooling. तो उसकी वजह से और because of इंटरनेट है और Zoom है, Skype है, आप virtually भी कनेक्ट कर सकते हो, in person भी कनेक्ट कर सकते हो, मगर usually आपके पास
एक आर्सेनल होता है, जैसे आपका रिसोर्सेज का जो एक क्या बोलते हैं, बेसिकली रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे हैं अवेलेबल, और वो आप भूलें मत, बिकॉज आप ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स में आपको मास्टरी होनी चाहिए। मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं, तो बिगिनिंग में मैंने बैठ के पढ़ा बहुत, और मैंने एक्चुअली मॉन्टेसोरी अप्रोच इस्तेमाल किया मेरे बेटे के साथ, बिकॉज मैंने फर्स्ट हैंड मुझे देखने को मिला है। तो आई गेस ये एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको होम स्कूलिंग में इंटरेस्ट है, तो कोई जो भी इंसान या इवेंट या बच्चा या कोई चीज़ जिससे आपको वो इंटरेस्ट पैदा हुआ है, उस पे आप थोड़ा तवज्जो दें कि वो उससे सीखने की कोशिश करें। लाइक गेज करें कि ओके ये बच्चा इसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं, ओह! ये होम स्कूल्ड है, ओह! इसके पेरेंट्स ने क्या प्रोसेस इस्तेमाल किया है। तो लोगों से जैसे बात करें, इन्फॉर्मेशन लें, एंड डोंट बी शाय, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे सब सीख ही रहे होते हैं। तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ, तो मेरी दोस्त उसके बच्चे को मॉन्टेसोरी में भेज रही थी। तो उस वक़्त जिस तरह वो सीख रहा था, बहुत हैंड्स ऑन था, और वो जिस रेट पे लर्न कर रहा था, मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि इतनी जल्दी, इतनी छोटी उम्र में उसको इन चीज़ों की समझ किस तरह है। तो मैंने बैठ के उससे बातचीत की। सो द थिंग इज़ कि अम आप अलग-अलग रिसोर्सेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले खुद थोड़ा सीखा मेरी दोस्तों से, फिर अब जैसे-जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और उसको कोई एडवांस टॉपिक्स में पढ़ना है, तो जो चीज़ के लिए या मेरे पास अगर पूरा टाइम नहीं है, तो मैं उन चीज़ों को मेरा रिसर्च करके और मेरे बेटे को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, वो ट्यूटर से 1-2 सब्जेक्ट जो भी मुझे हेल्प चाहिए, और वो फिर ट्यूटर्स अम, को हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारा तरीका है, ये हमने तरबियत दी है, और ये हम चाहते हैं हमारा एंड रिज़ल्ट हो। और मेक श्योर करते हैं कि बच्चा और जो भी उसको हेल्प कर रहा है या हमारी फैमिली को हेल्प कर रहा है, वो सब्जेक्ट सिखाने में एक कनेक्शन हो, बिकॉज़ आई थिंक दैट्स वेरी क्रूशियल। So, moving on, the point is, bottom line of the sliders is, आप अकेले नहीं हैं. There are multiple resources and avenues. Um, Focusing on the why, थोड़े reasons जो जिनकी वजह से लोग होम स्कूल चूज़ करते हैं, या उनको जो ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम है, उनको लगता है कि वो उनकी नीड्स मीट नहीं कर पा रहा। अगर वो इट कुड बी कि उनका बच्चा ज़ायद आपका बच्चा ज़ायद ज़्यादा एक्सेलरेटेड क्लास में पढ़ना चाह रहा है, या जो सब्जेक्ट्स में उसको मुश्किल हो रही है, या टीचर वन ऑन वन टाइम नहीं दे पा रहे, या रेशो बहुत ज़्यादा है, लाइक 30 किड्स टू अ टीचर, फॉर व्हाटएवर रीज़न देयर इज़ डिससैटिस्फैक्शन, कोई मतलब खुशी नहीं हो रही जो टिपिकल स्कूल सिस्टम है उसके साथ। दूसरी बात ये, एज मुस्लिम्स आई थिंक ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? जो पहले 7 इयर्स बच्चों के होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं उनकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के लिए, दीनी एजुकेशन के लिए। तो जब आप होम स्कूल करते हो, तो द डिज़ायर आपकी मर्ज़ी होती है आपके करिकुलम के ऊपर। मीनिंग आपको जिस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस देना है या जिस चीज़ पे कम एम्फेसिस देना है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो आपके बच्चों के इंटरेस्ट और नीड्स के हिसाब से, या आपकी फैमिली की नीड्स के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपको ये मुझे दूसरी गिव्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस और मॉरल कंसर्न्स। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में, और आई नो दूसरी कंट्रीज़ में भी जेंडर आइडेंटिटी के इश्यूज हैं, और दूसरे और भी लिबरल आइडियाज़ हैं, एंड उसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, रिगार्डलेस कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है उन चीज़ों पे। बट एक उम्र होती है सर्टन टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कराने की, और बाज़ दफ़ा ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम्स में, एटलीस्ट यूएस में, एक
ओवरऑल एजेंडा होता है जो पुश हो रहा होता है, एंड आपको सोचना होता है कि ये मेरे लिए कोई कंसर्न्स क्रिएट कर रहा है, या आई एम या मैं ठीक हूँ हैंडल करने के लिए. सो ये दिस इज़ यूजुअली वन ऑफ द रीजन. सो ऑल्सो स्पेशल नीड्स, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को वो वो उनकी कोई भी डिसेबिलिटी, नॉट डिसेबिलिटी बट कोई भी फ़र्क हो सकता है, राइट, उनकी लर्निंग की नीड्स में. मे बी दे आर dyslexic, or maybe they are other physical needs हैं, और उनकी वजह से बच्चे को इस जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी सेंसिटिविटीज़ बहुत यूजुअली हाई होती हैं, एंड कभी कभार अगर वो उनको सही तरीके की ट्रीटमेंट नहीं मिल रही होती, उनकी स्टडीज़ भी इम्पैक्ट हो सकती हैं. तो कभी कभार ये एक वजह हो सकती है पेरेंट्स के लिए. और सबसे बड़ी चीज़ होम स्कूलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी. इस पे मैं इनफ स्ट्रेस नहीं कर सकती कि ये हमारे लिए, एटलीस्ट हमारी फैमिली के लिए, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी नेमत है होम स्कूलिंग की, बिकॉज हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं जस्ट लाइक अदर पीपल्स लाइफ्स, एंड ये um, एक वो है कि आप जैसे अगर आप हम लोग अगर रेगुलर, फॉर एग्जांपल हम लोग अभी यहाँ आए हुए हैं, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, अगर मेरा बेटा रेगुलर स्कूल में पढ़ रहा होता तो ये एक ऑप्शन ही नहीं रहता हमारे लिए. तो इसी तरह आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है, बिकॉज आप डिक्टेट करते हो. और फ्लेक्सिबिलिटी नॉट जस्ट इन लाइक ओ ट्रैवलिंग या इमरजेंसीज, बट ऑल्सो इन स्केजुलिंग, राइट. सो अगर आपको जैसे हिफ्स कराना है, या कोई दूसरी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है. या आपको हैंड्स ऑन लर्निंग करनी है और आपको कहीं ट्रैवल करना है कोई चीज़ सिखाने के लिए, या नेचर में टाइम स्पेंड करना है, आपके पास ये सारी चीज़ों करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है. सॉरी सानिया, आप मुझे टाइम का अंदाज़ा दे सकती हैं? हेलो? हेलो? It's been 9 minutes since you're speaking, Nadia. ओके, सॉरी. थैंक यू. मुझे यहाँ स्टॉप करना है. किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं सो फार? We'll take the questions in the end. Oh, okay, great. That's fine. Okay. So, observation in choosing a pedagogy. So basically, observe करने के लिए, I mean, observation बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, because हमें जब बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं, समटाइम्स आपको उनको ऑब्जर्व करने का मौका नहीं मिलता कि वो लोग किस तरह से बेहतर सीखते हैं. लाइक विजुअल लर्नर हैं, ऑडिटरी लर्नर हैं, हैंड्स ऑन लर्नर हैं. किस चीज़ से वो बच्चा वो जो स्पार्क होता है जब सीख रहा होता है, तो किस चीज़ से वो स्पार्क आता है. और ये मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वंस आपने डिसाइड कर लिया कि ओके होम स्कूलिंग करनी है, अब किस तरह से करनी है. और अगर आप जाओगे मार्केट में, बेतहाशा ऑप्शंस हैं, सो उसको फिल्टर डाउन कैसे करें. वन ऑफ द वेज इज़ आप आपके बच्चे को ऑब्जर्व करें कि किस चीज़ से इसको खुशी मिलती है और किस चीज़ में इसको इंटरेस्ट है. बेस्ड ऑफ ऑफ दैट आप फिर अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं, अलग अलग करिकुलम से फोकस किया हुआ है अलग लर्निंग स्टाइल्स में. तो एक मुझे डिटेल्स में नहीं जाना है, बट जस्ट हाई लेवल थोड़ी हैं. जैसे फॉर एग्जांपल
ट्रेडिशनल करिकुलम्स जो बेसिकली स्कूल को मिमिक करती हैं। फिर एक अलग तरीके की हैं जो जैसे मॉन्टेसोरी बेस्ड हैं। उसमें मरिया मॉन्टेसोरी की जो थॉट प्रोसेस है और थियरीज हैं, वो बेसिकली इट्स चाइल्ड लेड लर्निंग। तो आप बच्चे के लिए प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके लेवल पे आप आते हैं और दुनिया उसके नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं और आप गाइड की तरह बनते हैं उसके लिए। ये एक और अप्रोच है। एक और है शार्लेट मेसन। और ये मैं बाद में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ईमेल कर सकती हूँ, बट द बॉटम लाइन इज़ कि अलग-अलग थॉट प्रोसेसेस हैं और आपको काइंड ऑफ नैरो डाउन करना है कि आपके बच्चे को कौन-सा सूट करेगा। सो उनकी लर्निंग स्टाइल जो ऑलरेडी मैंने एड्रेस की, आपकी फैमिली वैल्यूज़, एंड yeah, this is an overview basically. And then sorry, I don't know ये box कहाँ से आया है. I'm sorry about that. But जो creating a learning environment, so आपके घर में आप एक कमरा डेडिकेट कर सकते हो या एक स्पेस उनके कमरे में डेडिकेट कर सकते हो। बट द रियलिटी इज जब आप होम स्कूलिंग करते हो, यूजुअली लर्निंग आपकी डेली लाइफ में एक हिस्सा बन जाता है। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज, आप अगर जैसे किचन में नाश्ता पका रहे हो बच्चों के लिए और उस वक़्त अगर बच्चा मैथ के बारे में सीख रहा है, होम स्कूलिंग की अच्छी चीज़ है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। एंड आप डिपेंड करता है आप कौन सा करिकुलम या स्टाइल चूज़ करते हो, मगर आप हर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों को सिखाने के लिए। सो इफ़ यू आर अगर आप किचन में हो, आप खाना पका रहे हो और बिज़ी हो, तो आप बच्चे को साथ में आपके किचन में ले आ सकते हो, उसको मेजरिंग सिखा सकते हो। जो क्या कहते हैं फ्रैक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं मैथ में। क्यों सीखते हैं या इंग्लिश में या कोई और सब्जेक्ट में? ताकि हम हमारी लाइफ को अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल स्किल्स देने के लिए आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जब आप होम स्कूलिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूजुअली रेगुलर बच्चे घर पे आई मीन स्कूल में होते हैं, पर अगर आपका बच्चा घर पे है, आप अगर उनको बजटिंग के बारे में सिखाना चाह रहे हो या मनी करेंसी के बारे में सिखाना चाह रहे हो, आपको यू नॉट कन्फाइंड, आप कन्फाइंड नहीं हो किताबों से ओनली। आप बाहर जाके उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं और उससे भी बच्चा सीखता है। सो आई गेस मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जब होम स्कूलिंग का सोचें, द कॉन्सेप्ट इज थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कि आप को सिर्फ एक सेट तरीके से नहीं करना ज़रूरी है। बहुत सारी आप चीज़ें कर सकते हो और अकॉम्प्लिश भी हो सकती हैं इन रियल टाइम, इन द रियल वर्ल्ड, विदाउट आपका जो आपका क्या कहते हैं, जो आपको फुलफ़िल करना है उस बच्चे का लर्निंग, वो फुलफ़िल हो सकती है विद अ हैंड्स ऑन अप्रोच, नॉट नेसेसरली कि सिर्फ वो टेबल और कुर्सी और किताब के सामने बैठ के करें। और इससे एक्चुअली इंटरेस्ट भी बढ़ता है, बिकॉज़ बच्चों को ऑटोमेटिक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है कि जो मैं सीख रहा हूँ, ओह! मैं अप्लाई कर सकता हूँ मेरे डे टू डे एक्सपीरियंसेस में। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज socialization, and I think एक्चुअली जब आप अगर होम स्कूलिंग में हो, आई डोंट नो दूसरे होम स्कूलर्स कैसे उनको ये सुनना पड़ता है या नहीं, मगर नंबर वन क्वेश्चन मुझे मिलता है कि ओ तो दोस्तों का क्या है, तो वो कैसे लोगों से कैसे मिलता है, और बिकॉज यूजुअली लोगों को लगता है कि स्कूल एक सबसे ज़्यादा सॉरी स्कूल मेन एवेन्यू है सोशलाइजेशन का। एंड
आई थिंक ये चीज़ डिबंक करने के लिए आपको बैठ के पहले सोचना होगा कि आपकी रियल लाइफ में आप कौन सी आप कब सिर्फ अपने ही उम्र के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इन द रियल वर्ल्ड हम छोटे से लेके बड़ों से लेके आप हर उम्र के लोगों से आपके इंटरेक्शंस होते हैं। अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं, आपके बच्चे को डेफ़िनेटली वो सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। बिकॉज़ अगर आप आपके बच्चों को बाहर ले जा रहे हो, बी इट द लाइब्रेरी या ग्रोसरी स्टोर या another great place is the masjid, right? मस्जिद में आप ले जा रहे हो जैसे नमाज़ों के लिए या जो भी है। बच्चों को एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलती है सोशल इंटरेक्शन की, और उनके दोस्तों का सर्कल भी आपको बहुत ही जैसे रोमाना ने कहा कि आपको चीज़ें इंटेंशनली करनी होती हैं, तो आप इंटेंशन से आपके बच्चों का फ्रेंड सर्कल क्रिएट कर सकते हैं बनिस्बत के रैंडम दोस्तियाँ उनकी बने विथ आई मीन आपके जो लाइक आपके जो कंपेनियंस हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी तरबियत पे। सो दिस इज़ वन थिंग टू थिंक अबाउट कि होम स्कूलिंग इज़ एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल बिकॉज आप खुद के सोशल सर्कल्स क्रिएट करने का मौका मिलता है आपको। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हम लोग ने जब मेरा बेटा 2.5 साल का था हमने होम स्कूल को-ऑप क्रिएट किया था। एंड व्हाट दैट इज़ बेसिकली लाइक माइंडेड फैमिलीज़, जैसे जो फैमिली जिनके ख़्याल एक जैसे या सिमिलर होते हैं, वो लोग एक इकट्ठे होके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड अप कर लेते हैं, या वो लोग टर्न्स लेते हैं बच्चों को पढ़ाने की, या अलग-अलग किस्म के को-ऑप्स होते हैं। बट बेसिकली एक ग्रुप होता है फैमिलीज़ का जो होम स्कूलिंग कर रही होती हैं, जो एक दूसरे के साथ या सोशलाइजेशन के लिए या शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज के लिए अलग-अलग वजहों की वजह से वो गेट टुगेदर होते हैं। और वो वेरी करता है, थोड़े लोग हर रोज़ मिलते हैं, थोड़े लोग हफ्ते में 1 बार या 2 बार मिलते हैं बस एक्टिविटीज़ के लिए। इट्स अप टू यू। तो आप ये भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। एंड आई थिंक द मेन थिंग इज़ एट लीस्ट फॉर मी एंड आई एम assuming यहाँ पे भी मुसलमान पॉपुलेशन सिर्फ 10% है इंडिया में कंपेयर टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। एंड सो मे बी आई डोंट नो यहाँ इतना है या नहीं, मगर यूएस में डेफिनेटली लोगों को जो जब बड़े हो जाते हैं उनको आइडेंटिटी उनकी दो अलग आइडेंटिटीज़ बेसिकली मैनेज करना उनको मुश्किल होता है। और उनकी जो इस्लामिक आइडेंटिटी है उसमें कॉन्फिडेंट होना बाज़ दफ़ा उनके लिए मुश्किल होता है। पर अगर आप बचपन से उनको इन चीज़ों ऐसी एनवायरनमेंट में रखोगे कि उनको प्राइड होगा उनकी उनके रिलीजन में और उनके फेथ में, तो बच्चे को खुद खुशी होगी उसकी आइडेंटिटी से, और वो प्राउड होगा और ये कैरी करेगा अडल्टहुड में। सो आई थिंक ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा मौका मिलता है व्हेन यू होम स्कूल्स। वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स कि आपको उनकी एनवायरनमेंट शेप करने का मौका मिलता है, एंड आपकी एनवायरनमेंट से आप खुद शेप होते हो। सो आपको थोड़ा इस चीज़ पे अमल करने का आई मीन इट्स समथिंग टू थिंक अबाउट बेसिकली। एंड सो ओके, ये स्लाइड पे मैंने थोड़ी चीज़ें बोल्ड की हैं बिकॉज़ ये रियलिटी है, राइट? लाइक आप जब होम स्कूल कर रहे हैं, आपको टीचर भी बनना है, आपको अगर आप सब कुछ अकेले कर रहे हो, और अगर आपके घर के जो चोर्स हैं, अगर बिलफर्ज लाइक यहाँ पे तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ हाउस हेल्प, बट वेयर आई कम फ्रॉम वहाँ पे हाउस हेल्प बहुत रेयर है। सो आपको एक सिस्टम बनाना है, या आप
आपको आपके स्पाउस के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज जब आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको उसको प्रायोरिटी देना होगा फॉर श्योर। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दो, मगर उसकी वजह से कभी कभार लोगों को होता है, लाइक मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है थोड़े लोगों को एक ड्राउनिंग फीलिंग आ जाती है या फेलियर की फीलिंग आ जाती है। एंड जब वो होता है तो उससे पहले मेरा जो सजेशन है, अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हो तो द मेन थिंग इज कोई और चीज़ करने से पहले एक रियलिस्टिक पिक्चर अपने स्पाउस के लिए पेंट करने बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपका स्पाउस ऑन बोर्ड नहीं हो सकता है इस चीज़ में, तो देन शायद रिकंसिडर करने की ज़रूरत हो। बिकॉज द रियलिटी इज़ कि हाउस होल्ड के चोर्स, टाइम मैनेजमेंट, खुद की नीड्स, ये सारी चीज़ें बैलेंस करना और बच्चों को पढ़ाना भी इट्स नॉट ईजी इफ़ यू डोंट हैव अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो आपस में। एंड सो दैट्स ऑल आई कैन से, वो बहुत ज़रूरी है एक अंडरस्टैंडिंग होना स्पेसिफिक टू द challenges जो होम स्कूलिंग में आते हैं। एंड as far as obstacles, जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चों को दिस इज वन थिंग दैट इज अ लिटिल डिफरेंट, राइट? कि यूजुअली ग्रेड स्कूल में तो आप ग्रेड्स देते हैं बच्चों को, बट अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो यूजुअली एक ओवरआर्चिंग कॉन्सेप्ट होता है कि आपको आपके बच्चों के दिल में द लव ऑफ लर्निंग, बेसिकली आपको पढ़ाई से उनको जुड़ा के रखना है और इंटरेस्ट उनका रखना है। तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखना ज़रूरी है, बिकॉज ग्रोइंग पेन्स तो होते हैं। इट्स नॉट लाइक आप इमीडिएटली स्टार्ट करोगे और आपका बच्चा कोई इश्यूज उसको नहीं होंगे, शायद आपके एक्सप्लेनेशन में या आपस में। टीचर तो चलो पेड होती है, मगर अगर आप मगर आप अगर पढ़ा रहे हैं तो शायद आप, सॉरी एक्सक्यूज मी बेटा, शायद आपके बेटे को या बेटी को फ्रस्ट्रेशन हो आपके पढ़ाने के तरीके से। Sorry, go. I'm sorry for the background noise. But yes, that's all I wanted to say there. And उनकी progress assess करने के लिए बाज़ दफ़ा टेस्ट आते हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो आप खुद प्रिंट करके असेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आप प्रोफेशनल्स, जैसे अगर कोई आपके जाने वालों में से या कहीं बाहर कोई टीचर्स हैं या कोई क्वालिफाइड पर्सनल हैं जो आपको लगता है फेयर असेसमेंट, अनबायस्ड असेसमेंट दे सकता है, वो बहुत ज़रूरी है, जस्ट टू काइंड ऑफ गेज कि ओके मेरे ये टारगेट्स थे, ये टारगेट्स अचीव हो गए हैं या थोड़े गैप्स हैं। एंड इट्स बेटर कि आप वो अर्लियर कैच करें बनस्बत के लेटर। सो आई वुड रिकमेंड कि जैसे हर क्वार्टर आप एक असेसमेंट कर लें कि आपका बच्चा है कहाँ, और इस तरह आप इंश्योर कर सकते हैं कि कोई गैप्स ना रहें। सो एट द एंड ऑफ द डे होम स्कूलिंग बहुत ही पर्सनल चॉइस है, और सबसे अच्छी बात है कि वो टेलर हो सकता है सबकी यूनिक नीड्स पे, आपकी फैमिली की नीड्स पे, शायद चाहे वो डिसेबिलिटी की वजह से हो, रिलीजन की वजह से हो, ट्रैवलिंग नीड्स हो, जो भी आपका नज़रिया है, जो भी आपकी सोच है, आप होम स्कूलिंग को जो आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। कोई एक सेट इन स्टोन तरीका नहीं है। एंड आई थिंक खुद को थोड़ा लोग आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग शायद इन्फ्लुएंस होते होंगे दूसरे लोगों की पोस्ट देख के या दूसरे लोगों की चीज़ें देख के, लाइक ओ ये लोग कितना कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही। आप उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि वो इंटरेक्शन, जो अगेन आई गो बैक टू रोमाना बिकॉज आई थिंक उसने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले हैं कि जो इंटरेक्शन आप
आपके और आपके बच्चे के बीच में हो रहा है ना, वो एक लाइफ लॉन्ग एक रिलेशनशिप solidified हो रही है, और बच्चा आपको आपके बच्चे को एक अलग ही नज़रिए से देखने को मिल रहा है, जो बहुत कम पेरेंट्स को देखने को मिलता है। एंड उससे बढ़ के कोई और चीज़ नहीं है। और क्वालिटी टाइम आपको, आपको जितने प्रोजेक्ट्स करने हैं आप कर लो, मगर अगर आप आपके बच्चे को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे और एक्चुअली उसकी एसेंस क्या है समझ नहीं पा रहे, उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। और या फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है बिकॉज आप XYZ चीज़ें एक एक स्पेसिफिक तरीके से नहीं कर पा रहे। एट द एंड ऑफ द डे बच्चे बच्चों का एक जब वो सीखते हैं तो आई गेस वो क्या याद रखते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होता है उनके ट्यूटर से, आई थिंक उससे भी अफेक्ट होता है। लाइक आई एम सॉरी, नॉट एक्सपीरियंस बट लाइक द इंटरेक्शन दे हैव विद देयर टीचर्स। सो आई डोंट नो आप लोगों ने अगर नोटिस किया है, जैसे अगर बच्चा बहुत ही इंजॉय करता है किसी टीचर से, तो बाज़ दफ़ा वो टीचर उनको इस सब्जेक्ट से बहुत ही अटैच कर देता है। तो वो रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो अप्रोच है और आपका जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, रिगार्डलेस कि आप यू नो इंस्टाग्रामेबल चीज़ें कर रहे हो या नहीं बच्चे के साथ। और ये आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ माय थिंग। आई एम सॉरी, बहुत बात कर दिया होगा मैंने शायद। समरीन, व्हाई आर हम लोग औरतें क्यों हर बात बात पे अपोलोजाइज करते हैं, जबकि हम एफर्ट लगा के एक प्रेजेंटेशन बनाए और उसे शेयर कर रहे हैं। बहुत इंसाइटफुल था। इट वाज मतलब मुझे फ्रैंकली कोई आइडिया नहीं था होम स्कूलिंग का, और आपका सुनने के बाद मुझे समझ आया है कि ओके, पर्सपेक्टिव समझ आया है। जज़ाकल्लाह खैर फॉर शेयरिंग। अब मैं इनवाइट करूंगी अर्शिया को कि आप भी कुछ बोलिए, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिखें, या जब स्पीकर्स हमारे पैनल डिस्कशन के स्पीकर्स बात कर लेंगे तब आप अपना हाथ रेस करके अनम्यूट करके भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो अर्शिया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am I good enough? Audible? जी, आपकी आवाज आ रही है। जज़ाकल्लाह खैर रुमाना नादिया फॉर एलॉबरेटिंग बहुत सारी चीज़ें होम स्कूलिंग के बारे में। मैं पहले अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी हमारे पार्टिसिपेंट्स के। आई एम अर्शिया तालुकदार एंड बेसिकली आई एम एन एंटरप्रेन्योर. I do that, I am a co-founder of a business which has been running since 2018, and also I have just founded a hijab instant hijab business. So along with it, I have 4 kids, alhamdulillah, who are ranging from uh, almost 3 to 9 years old. So मेरी होम स्कूलिंग की जो जर्नी होती है वो शुरू होती है मुझसे. So मेरा जो पूरी स्कूल लाइफ थी, so I was never taking studies and academics like that, like the other kids in my school. And also, alhamdulillah, getting the privilege to be learning in a school which was run by my father, I didn't have a lot of load and things like, I felt very comfortable in the school. But the moment we got relocated, मैं उर्दू में इंशाल्लाह ट्राई करूंगी क्या, हम जैसे हमने दूसरी स्कूल गए, हम जो पहला दिन था हमारा 8th ग्रेड के बाद, मुझे याद है मेरा पहला दिन एक नई स्कूल में जो बिल्कुल कंफर्ट जोन के बाहर था. तो मुझे तब वो स्कूल की हार्शनेस और रियलिटी का अंदाजा हुआ. तो बेसिकली स्कूल में हमें ये फील होने लगा, क्या देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सोशल स्किल्स अगर आप देखो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है. सही है. अब सेल्फ कॉन्फिडेंस 80% बच्चों का स्कूल में नहीं रह पाता. क्यों? क्योंकि वो स्कूल का सिस्टम ऐसे डिजाइंड है कि वो टॉप 20% को ही 1st, 2nd, 3rd और मे बी डिस्टिंक्शंस देते हैं, और बाकी लोगों को एक पर्ची में ये बता देते हैं कि यू आर नॉट able to compete with these guys. And so we end up feeling like that. And
Alhamdulillah, although I was not among the 80%, I was blessed to be among the 20, and I hope every one of us over here, this is a good crowd, Alhamdulillah, हमारी बहनें is an inspiration. हमने ये सब नहीं फील किया, लेकिन जो अक्सरियत स्कूल की जो रहती है वो यही फील करते हुए बड़ी होती है। उनको फिर ये सारी चीजों को मैं पहले ही सोच रही थी, मतलब इन माय स्कूलिंग डेज कि कुछ तो है जो गड़बड़ है, ये सही फील नहीं हो रहा है। और हमने फिर क्या किया कि आफ्टर माय 10th grade आई स्टॉप्ड गोइंग टू अ रेगुलर कॉलेज, लाइक आई वाज एनरोल्ड in a regular college. I wanted to pursue some subjects जो मुझे बहुत खास नहीं लगे, टीचर्स की एक्सप्लेनेशन वगैरह। तो मुझे लगने लगा कि ये तो बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है, चलिए हम घर पर रहते हैं। हम घर पर ज्यादा छुट्टियां कर करके बंक करके बेसिकली घर पर बेकिंग कर रहे होते थे हम, नौमान अली खान को सुन रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई सॉ टू माय शॉक क्या मेरी जो स्कूलिंग लर्निंग हो रही है वो बहुत बेहतर हो रही है उनसे जो लोग रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं। दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी बहनों को जो मैं शेयर कर रही हूँ। हो सकता है सबके बहुत अलग एक्सपीरियंस हो, बहुत प्यारे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हो, लेकिन आई वॉज द ऑड मैन आउट आई थिंक। तो मैंने ये सब चीजों को पहले से फील किया और फिर हो गया ये सब चीजों में। आई वॉज ऑल्सो वेरी कीन टू फॉलोइंग द फितरा, यू नो। तो फितरत जो होती है ना, हमारी एक आवाज देती है कि अब हम 18 ईयर हो गए, 19 ईयर, तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक टिक होने लगता है। दिस इज नेचुरल, दिस इज साइंस। So I always felt okay if marriage is a thing, okay, let's do that. And also I got married, and alhamdulillah I was blessed to have a husband who was very supportive, who always asked me कि यार मतलब what do you want to do. I did my schooling afterwards also. लेकिन फिर ऐसे हुआ कि मैंने जब अपने आप को फिर से देखा कि नहीं, आई एम हैविंग किड्स नाउ, एंड वो मोमेंट मेरा एक था जब मैंने सोचा कि नहीं, इनके लिए अब मुझे क्या एजुकेशन लेना है। और उस दौरान आई वाज इनटू द बिजनेस। आई लर्न सो मच हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फ्रॉम द बिजनेस कर जो हम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव टू गो थ्रू बुक्स, बट साथ में हम जब तक हैंड्स ऑन नहीं करते हमें नहीं पता होता। तो बिजनेस भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था शुरू में, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह की 5-6 ईयर की जब टाइमलाइन देखी बिजनेस चलाने की कोशिश की, तब हमने बहुत कुछ ऐसी चीजें सीखी जो हम एक थ्योरी में नहीं सीख सकते थे। तो तब से हमारा एजुकेशन को लेकर जो अप्रोच था वो बिल्कुल डिफरेंट था। इनफैक्ट इतना डिफरेंट था कि आज भी जब कोई ये स्टोरी सुनता है तो उसे लगता है कि नहीं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, इट इज नॉट पॉसिबल। बट इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग टू डेवलप समथिंग which is, and I'm trying to reach out ऐसे लोगों तक जो लोग इस चीज को फील करते हैं जैसे मैंने फील किया। क्या हम क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें हम मदरहुड के साथ साथ हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स भी पैशन से फॉलो करें और साथ में हमारे बच्चों को भी हम एजुकेट करें। वी डोंट हैव टू स्किप आवर थिंग्स, यू नो, एंड at the stake, you know, we don't have to put it in the stake for the kids. In fact, this is, you know, how studies shows कि बच्चे सबसे ज्यादा इमिटेशन से सीखते। तो जब हम एज ए मदर उनके सामने हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, हम अपनी चीजों के लिए पैशनेट होते हो, तो वो बच्चों को बहुत कुछ सिग्नलिंग करता है। वो बच्चों को बता रहा होता है कि माय मदर हैज ऑल दिस थिंग्स गोइंग ऑन इन हर लाइफ एज वेल, एंड इंशाल्लाह इन दैट प्रोसेस वी आल्सो टीच देम मोर इंशाल्लाह। तो होम स्कूलिंग की जो डेफिनेशंस नादिया और रुमाना ने दे दिया वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने बताया। तो हमारा अप्रोच होम स्कूलिंग को लेकर फिलहाल हमने एक कलेक्टिव होम स्कूलिंग शुरू की है जिसमें आई टेक केयर ऑफ मोर किड्स देन माइन। तो आई हैव 3 kids who come under 8 year olds। तो मेरे साथ मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, आई नीड पीयर ग्रुप फॉर देम। अकेले घर पर मैं कैसे करती। So, if I'm sorry if I'm running too much, Sania, you can just tell me. This is my first time at MSWC. तो मुझे like I don't know if I'm going to be able to. आप बिल्कुल फ्रैंकली बात करिए, कोई इशू नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये होता है कि होम स्कूलिंग हम सोचते हैं क्या है। होम स्कूलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत डिफरेंट अप्रोचेस है। इट इज वेरी डिफरेंट। होम स्कूलिंग एक बड़ा सा टॉपिक है जिसमें हम
अनस्कूलिंग से लेकर एक्लेक्टिक स्कूलिंग हो गई, या फिर अ लॉट ऑफ अदर्स, स्ट्रक्चर्ड स्कूलिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो लोग एक्सप्लोर करते हैं। ग्लोबल स्कूलिंग होती है, उसमें अलग अलग टाइप की चीजें बन रही है। एंड ऑल्सो इट इज कमिंग अप लाइक हाउ सानिया सेड, इन इंडिया अचानक से एक ट्रेंड सेट हो रहा है, बट इट इज स्टिल अ niche in India, I would say, because it is not yet, it does not have any you know structure in Indian system. लेकिन हम जब होम स्कूलिंग सोच रहे थे हमारे बच्चों के लिए, तब हमने ये देखा कि मुझे कैसी स्कूलिंग चाहिए और मेरे लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल कौन सी स्कूलिंग होगी। सो फॉर मी इट वाज अनस्कूलिंग। अनस्कूलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप आपके बच्चों के साथ लर्निंग एक्सपीरियंसेस बहुत अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से करते हो। तो आप स्कूल का एनवायरनमेंट घर पर नहीं बनाते हो, बल्कि घर को ही एक लर्निंग एनवायरनमेंट दे देते हो। जैसे आप हर मौके पर आप खुद देखते हो हाउ यू कैन मेक the concepts of science, maybe the concepts of mathematics, or the skills, essential skills आप बच्चों को कैसे सिखा रहे हो, मगर without even them knowing you are trying to do that. So for example, my kids are also learning. मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी जिसमें आपको एक अंदाजा होगा कि बच्चे कैसे कैसे ढंग से क्या क्या सीख सकते हैं इंशाल्लाह। So, and yeah, please note that I am also a beginner. I don't have I have not done this, I would say, मुझे एक करिकुलम बनाना जरूर है, लेकिन आई हैव नॉट मेड अ वेरी हार्ड एंड फास्ट करिकुलम येट टू शेयर विद एवरीवन। आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट, बट इट विल फोकस ऑन मदर्स जो माए करना चाहती है और वो चाहती है कि अपने भी पैशंस वो साथ में रखे और उस एक नेचुरल तरीके से करे। तो ये होम स्कूलिंग बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से होता है। So I would start with this slide. So basically ये कुरान की आयत है ना, वलम्मा बलगा शुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है यहाँ पर, और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब वो बहुत अपनी स्ट्रेंथ और मैच्योरिटी में पहुंच गए, तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म दी। सो ये अल्लाह ताला कह रहा है कि ये हम एक जजा है जो अच्छे लोगों के लिए, मुहसिन लोगों के लिए देते हैं। सो इससे हमको ये समझ में आता है कि अल्लाह ताला जब किसी को तोहफा देना चाहता है तो वो एक इल्म और हिकमत की शक्ल से अल्लाह ताला तोहफा देता है, और हमारे बच्चों के लिए हमें जरूर वही चाहिए। बिकॉज आपको एक मोटी सी चीज बताऊंगी। आई जस्ट केम अक्रॉस दिस स्पीकर, डॉक्टर तारिक, हु सेड the door to civilization is through education. And how does that like interpret कि हमें अगर हमारी पूरी सिविलाइजेशन को बदलना है, हमें हमारे हालात को बदलना है, तो वो एजुकेशन से हो। तो ये इल्म जो है वो एक अल्लाह की तरफ से एक नेमत है और वो गिफ्ट है। और जैसे ही हम मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं, हम अगर हमारे बच्चों की क्लासरूम्स में अगर हम बैठ जाए 8 घंटे, तो हमें पहले ही दिन में ये पता लग जाता है कि देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉक्सी टाइम जो हम खामखा बस एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए बच्चों को भेज रहे हैं। I do admit there are very good schools out there. In fact, there are excellent schools who are coming up with अभी जैसे न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर हमको एक्सीलेंस की तरफ देखना है, तो यार होम स्कूलिंग फॉर मी इज वन ऑफ द वे। आई ट्राई टू गेट द बेस्ट फॉर माई किड। सो होम स्कूलिंग से हमने ये किया कि अब हमें लीडर्स बनाने हमारे बच्चों को। दिस इज द प्रॉब्लम आई विल गिव कि हम कोई भी चीज करते क्यों करते हैं। जैसे वाई पूछा था रुमाना, तो ये वाई होम स्कूलिंग इज बिकॉज वी वांट लीडर्स रेदर देन just some pass outs who are able to have do good jobs. We need leaders of the industry, inshallah, or whenever whatever they are good at, whatever they want to pursue. तो हमें एक ऐसा एजुकेशन चाहिए जिससे हम हमारे बच्चों को ऐसे रूह वाले हमारे बच्चे हो जो सही में वो दर्द रखते हो, सबकी तकलीफ सोचते हो,
और वो लोगों के पास उतनी सलाहियत हो कि वो चीज अचीव कर सके। बस ये 2 चीज होती है। किसी इंसान को प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो स्किल सेट होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो कितने जरूरी है वो हम आज देख सकते हैं। एवरीथिंग इज रिलेटेड एंड अराउंड अस, वी कैन रियली रिलेट। क्या कैसे हमारे पास जब तक सलाहियतें और स्किल सेट ना हो तो हम वी विल जस्ट एंड अप complaining about the problems, but we will not reach to a solution. So this is एक शॉर्ट वो क्या मैंने रिसर्च की थी जब मैंने होम स्कूलिंग शुरू करना था मुझे। आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन हाउ शुड आई डू दैट, कैसे मेथड करना है। तो मैंने देखा क्या वॉल्डॉफ, जैसे मॉन्टेसरी इंडिया में बहुत फेमस है, लेकिन मेरे लिए मुझे वॉल्डॉफ बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज क्लोज टू इस्लाम, व्हाट इस्लाम टीचेस। सो मैंने वॉल्डॉफ मॉन्टेसरी सारी स्कूल्स को बहुत अच्छे से रिसर्च की, तकरीबन 6 महीने लगाकर। और फिर मुझे ये समझा कि नहीं, हम फिर भी कुछ लैकिंग है, और फिर हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ढूंढ ढूंढ कर निकाला, इमाम गजाली के वर्क से एजुकेशन को समझने की कोशिश की, और ये देखा क्या अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट पेडागोजी जो था हमारे नबी का, जो तरीका था एजुकेट करने का, ठीक है, वो ये था कि वो रोल मॉडलिंग करते थे। वो खुद ऐसे बनते थे और उसके बाद वो इमिटेशन से लोग उनको देखकर वो खुद उनकी तरबियत हो रही होती। और सेकंड दुआ, एंड सेकंड वाज द प्रोसीजर्स ऑल्सो। स्ट्रेटेजीज थे जरूर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बिल्कुल कैसे स्ट्रेटेजीज थे वो कभी किसी दिन हम देखेंगे। लेकिन उसके बाद दुआ थी लास्ट। हमको नहीं पता, हमारी ये सारी कोशिश है, अगर अल्लाह को मंजूर हो तो सही में हमारे बच्चे उस लायक बने, अल्लाह को ना मंजूर हो तो वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट। तो हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन में जो आईक्यू को लेकर हमारे टेस्ट होते हैं, आईक्यू टेस्ट इज द स्टैंडर्डाइज टेस्ट जिससे हम पता करते हैं कि बच्चे में क्या किस लेवल का इंटेलेक्ट है। तो एक इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है बेसिकली 20, एक स्कूल में जनरली 20 to 19% ऑफ ड्रॉप होता है। दिस इज ऑल थ्रू रिसर्च। तो ये मैं ऐसे अपने आप से तो नहीं कह रही, लेकिन रिसर्च स्टडीज शोज दैट आईक्यू ड्रॉप स्कूल्स में बहुत ज्यादा होता है। हालांकि अगर आपका चाइल्ड एक गिफ्टेड चाइल्ड है तो वो बॉर्न विथ 120 आईक्यू होता है, मतलब उसके अंदर ये सलाहियतें, मेमोरी स्किल्स से लेकर हर चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन स्कूल में क्योंकि एक फिक्स करिकुलम फॉलो किया जा रहा होता है, हर एक को एक ही टाइप की चीजों में लगाया जा रहा होता है, और बेसिकली वो थ्योरी होती है मोस्टली। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, उनका बाय द एंड ऑफ देयर स्कूल इयर्स दे ड्रॉप इन आईक्यू। सेकेंड स्किल्स जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ वो ये है क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस। आप लोगों को पता होगा, जैसे हुमैरा के वर्कशॉप्स हमने अटेंड की है अल्हम्दुलिल्लाह। शी इज अ वंडरफुल साइकोलॉजिस्ट, आई थिंक साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट। सो शी वाज टॉकिंग अबाउट कैसे हमें इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है हमारे लाइफ में, कैसे हमको प्रॉब्लम्स जब आते हैं, हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं या कुछ, तो हम कैसे नेविगेट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे जो बच्चे होते हैं उनको सिखाना होता है। इट इज वेरी सिंपल एंड बेटर देन टीचिंग द किड्स व्हेन दे आर मोस्टली अंडर 8 year olds। 8 साल के पहले आपको यकीन नहीं आएगा, स्टडीज कहते हैं 80% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द अर्ली ईयर्स। तो 8 साल के पहले हमारे बच्चों की ब्रेन डेवलप हो रही होती है, और ये डेवलपमेंट इस स्पीड से होती है। जैसे ही वो बच्चा एक न्यूबॉर्न होता है हमारे गोद में, हमको लगता है कि बस ये तो साइड में उसको कहीं सुला दिया है, मगर नहीं, वो हमें देख रहा होता है, वो आवाजों को पहचान रहा होता है, वो लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। सो देर आर अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु आर कमिंग अप विद ऑल दिस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हम एक ऐसे जनरेशन में है जिसमें हमें ये रिसोर्सेज मिल रहे हैं। सो वी कैन लर्न कि कैसे 3 महीने का बच्चा भी पूरे घर को देख सकता है, उससे हम बता सकते हैं कि आप ये है, ये आपकी मम्मा है, ये आपकी दादी है, आप ये प्लांट्स है, ये उसकी जो ब्रेन स्पेस है और वो जो जिंदगी भर वो जो चीजें सीखेगा
उसको बढ़ा रहा होता है। तो हमारे अंडर 7 and 8 year olds जिन माओ के बच्चे छोटे हैं अभी, दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू बिल्ड अप दैट ऑल्सो। तो ब्रेन तो बढ़ेगा, उसके साथ हमें जो इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल्स है, जैसे हमारे अंदर एम्पैथी जरूरी है, दूसरों के लेकर हमदर्दी जरूरी है, या फिर हमको चैलेंजेस और वो सारी चीजें फेस करने आए, मुश्किलात का सामना करने आए, सब्र, और ये सारी चीजों की ट्रेनिंग हम अंडर 7 year olds में बहुत अच्छे से बना सकते हैं। एंड ऑल्सो नेचर, फॉर एग्जाम्पल ये 2 स्किल्स मैंने बताए हैं, देर आर अ लॉट ऑफ स्किल्स इंशाल्लाह जो बहुत डीप में जाना पड़ेगा जिसके लिए, बट दिस इज जस्ट अ जिस्ट ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट होम स्कूलिंग। सो दिस इज अनदर पेज जिसमें मैंने सिर्फ एक छोटा सा वो लिखा है कि हमें कौन से, जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए कौन से रखा था अचीवमेंट्स जो मुझे करने थे शुरू में। तो फॉर एग्जाम्पल एक हलक कुरान का सेशन होता था हमारे बच्चों के साथ, जो आपको लगेगा ये बस एक सेशन है, लेकिन उसके पीछे मकासद में बहुत सारी चीजें थी। जैसे हम हिफ्ज करा रहे हैं तो हमारे बच्चों की मेमोरी इंक्रीज हो रही है। उसके अलावा जब उनको वो सर्कल में बैठना पड़ता है, और शुरू में वो लोग 15 मिनट्स भी नहीं बैठ पाते, लेकिन जैसे जैसे आप उनको आदत डालोगे तो वो 1-1, 2-2 घंटा बैठने तैयार हो जाते हैं। तो ये उनकी एक फोकस और ये सारी चीजों को बिल्डअप कर रहा है। वैसे ही मेडिटेशंस, रिफ्लेक्शंस की आदत है हम बढ़ा सकते हैं। टीम वर्क, जब कलेक्टिव होम स्कूलिंग के बारे में यही है, मतलब आई एम वेरी सॉरी इफ आई जस्ट रैन अवे फ्रॉम दैट। क्या या सो कलेक्टिंग होम स्कूलिंग जो है बेसिकली हमारे बच्चों के साथ हमने और भी बच्चों को लिया है, जस्ट फॉर द पीयर अफेक्ट, ऑल्सो फॉर द सॉल्विंग सॉल्यूशन ऑफ दिस, क्योंकि हर माँ तो नहीं कर सकती है होम स्कूलिंग। आजकल ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रिसर्च करे या फिर करिकुलम डिजाइन करे या ये सारी चीज। तो इफ आई कैन अडॉप्ट मोर 5 किड्स इंशाल्लाह इट विल हेल्प माय किड्स ऑल्सो। आप देखोगे कि आपके बच्चे जब साथ में बाकी बच्चों के ज्यादा अच्छे से आपके साथ रहते हैं और मैनेज होते हैं, rather than being them alone in a room, it is better for them। तो क्रिएटिविटी एक फोकस होता है कि कैसे उनकी क्रिएटिव स्पेस बढ़ रही है। इंडिपेंडेंस मैंने यहाँ लिखा है, रिक्शा हम रोज गार्डन में करते हैं, हमारी स्कूल जो होती है। तो होम स्कूलिंग का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि हम तकरीबन 3 घंटे हम एक ऐसे गार्डन में जाते हैं जहाँ पर कोई वो नहीं है, स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट नहीं है। स्टिमुलेटेड से मतलब हमारे पास कोई झूले नहीं है, स्लाइड्स नहीं है, बस एक अर्थ है, प्लांट्स है, रास्ते हैं बस। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करीब में एक ऐसे गार्डन हमें मिला, और ना भी मिलता तो हम ढूंढते ऐसे गार्डन जहाँ पर बच्चे फोकस रहे और उनको ये नहीं हो कि बस वो आर्टिफिशियल प्ले में वो लोग लगे रहे। तो इससे क्या होता है, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे हमारे बच्चे बल्कि अब ऐसे हो गए कि 3 घंटे उनके लिए काफी नहीं होते, वो कहते और जाना है हमें। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, क्या हमारे बच्चों को हम गार्डन भी ले जाए तो एक बोझ बन जाता है, क्या हाँ वो स्लाइड्स में गिर नहीं जाए, माए खड़ी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये पता नहीं कि बच्चों को जितना नेचुरल एनवायरनमेंट देंगे वो लोग उतना खेलेंगे, उतना लंबा टाइम अपना उसमें डालेंगे, फोकस्ड लर्निंग होगी उनकी, दे विल इंटरेक्ट मोर विद द नेचर, दे विल गेट, बोलते ना उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं होगा, चारा ही नहीं होगा, बट टू प्ले विद द स्टिक्स, बट टू क्लाइंब द ट्रीज, but to play with the mud। So ये concept हमारा होता है। So this is some of the things हम ethics भी यही टाइम पर सिखाते हैं। Also after this I would, this is a small thing, my kids उनके बारे में जो problems थे, for example उनके कैसे हमने उसको बदला। जैसे हम नोटिस करते हैं कि बच्चे में क्या है जो ये एक रेगुलर स्कूल नहीं कर सकता। तो बच्चे में अगर फॉर एग्जाम्पल एग्रेशन है तो वो कैसे वो एग्रेसिव है, और कहाँ दिख रहा है वो दिन भर में, उसके प्ले में आपको नजर आ जाएगा जब वो लोग फ्री प्ले में है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बच्चों की नजर आने लगती है, आप जैसे उनको देखते हैं, उनको ऐसे सेटअप्स में भेज देते हो, यू ऑब्जर्व एंड देन यू कैन वर्क ऑन इट, यू नो कि इसकी वीकनेस ये है, हमें इस पर काम करना, वी हैव टू पुश her to give up on that habit and build something which is more beautiful। तो progress
ट्रैकर्स में हमारी फॉर एग्जांपल होम स्कूलिंग में हमने IQ रखा है, EQ रखा है, फिजिकल क्वेश्चंट है, जैसे हमारे बच्चे उस फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और सोशल क्वेश्चंट होते हैं कि हमें कैसे इन्हें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग एंड एम्पैथी, कन्वर्सेशंस कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं, ये प्रोग्रेस ट्रैकर्स है जो आप कोई भी स्कूल में आप अगर जाते हो, मुझे तो खैर नहीं मिले ऐसे स्कूल जहाँ पर दे आर टेलिंग कि ये हम करेंगे, हम आपके बच्चों का ये सब ख्याल करेंगे. So again, going to the point कि why do we want that in the first place is because we don't just want the IQ. IQ के लिए हम बहुत देख चुके हैं, बहुत competitions होती है, लेकिन क्या हमारा बच्चा इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर उस रेस में हमारे दीन तो ये नहीं सिखाता हमें बिल्कुल. हमें एक अगर इंटेलिजेंट बच्चा हो तो साथ में उसके पास एक अच्छा दिल भी हो, तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स करेगा फ्यूचर में, अब वो एक ऐसा स्पेशलिस्ट बनेगा जो अ, खिदमत के जज्बे से भी करेगा, जो दुनिया के खैर के लिए प्रोडक्शंस करेगा, और जो भी उसके अंदर स्किल्स हो वो पुट करेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड. सो अकॉर्डिंग टू डेनियल गोलमैन, ये एक साइकोलॉजिस्ट है, he said कि 80% of adult success, ये studies बताती है कि 80% of adult success comes from EQ. तो हमारे जब इमोशनल इंटेलिजेंस जब बहुत अच्छी होती है, बच्चा काबू पा रहा है अपने गुस्से में, बच्चा काबू पा रहा है अपनी जिद में, या बच्चा काबू पा रहा है उसके अंदर अगर कोई नेचर है जिससे वो बहुत पॉजेसिव है, वो शेयरिंग नहीं करना चाहता, मगर अगर उसको बचपन में ये चीजें सिखाई गई तो वो बड़े होने के बाद वो ज्यादा सक्सेसफुल बनता है, रेदर इन कंपैरिजन टू दोज जिनकी सिर्फ IQ बहुत हाई है, जो एकेडमिक्स में सिर्फ आगे है. तो दिस इज हाउ सक्सेस, दिस इज आल्सो हाउ साइंस एंड ऑब्जर्वेशंस एंड स्टडीज शो. सो दिस इज क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि नेक्स्ट 3 मिनट में आप कंक्लूड करें, सो दैट हमारे पास एटलीस्ट 10 मिनट बचे डिस्कशंस के लिए. so this is basically not ये जो स्लाइड था वो मैंने आज के सेशन के लिए नहीं बनाया था, बहुत पहले की बात. लेकिन मुझे सिर्फ ये when I heard Rumana and Nadia speak about it, I also wanted to show that there is a lot of hope, and in homeschooling there is a lot of windows open in homeschooling basically. तो हमारा जो पर्पस होता है वो बीइंग मुस्लिम्स, वी वांट टू रियली सी व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर कम्युनिटी, एंड इट इज द फैक्ट कि हमारे जो लोग हैं वी डोंट हैव इनफ लीडर्स. अल्हम्दुलिल्लाह, सानिया बीइंग वन, वी कैन सी अल्हम्दुलिल्लाह शी इज रनिंग दिस होल एफर्ट of MSWC. We need more such projects, we need leaders, and it will come through us as mothers. if हम ऐसे पर्सपेक्टिव रखते हो, हमारी सोच बुलंद हो, तो इंशाल्लाह वो हमारे बच्चों की स्कूलिंग जर्नी हम बहुत कंट्रोल में ले सकते हैं, और हम इससे बिस्मिल्लाह करके देख सकते हैं. ऑफ कोर्स आप फॉरेन स्कूल से तो नहीं निकालेगी, लेकिन आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए जितना हो सके, आपके पास टाइम हो, कि कैसे आपके बच्चों की कौन सी चीजें आपको लग रहा है स्कूल में नहीं फुलफिल हो रही है, तो आप वो चीजें जरूर कीजिए, आप इंस्पेक्ट जरूर कीजिए स्कूल्स में क्या सिखाया जा रहा है, मेन स्ट्रीम कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स क्या है, और उसको अगर आपको लगता है कि होम स्कूलिंग इज समथिंग यू कैन डू, please go ahead with it. There is a lot of, alhamdulillah, a lot of support groups also coming in, I think in India as well, जिसमें हम होम स्कूलिंग के लिए हम ग्रुप्स है जो बहुत सारे अच्छे कोर्सेज और आइडियाज वगैरह जनरेट करने के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है. यू शुड गो अहेड एंड थिंक अबाउट इट रेदर देन wasting or putting more and more years of your child's life in a setup which is not designed to manufacture leaders. It is designed to manufacture maybe consent or maybe something जो हम नहीं चाहते हमारे बच्चों के लिए. तो I would really end my presentation इंशाल्लाह. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार. So we want both goodness in both the worlds इंशाल्लाह. Jazakallah khair Arshia for sharing. Very insightful. अब हम लोग बहुत कम वक्त बचा है, तो क्विकली हम लोग सेशन कुछ क्वेश्चंस लेंगे.
अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप अपना हाथ रेस कर लीजिए और हम लोग उसी ऑर्डर में इंशाल्लाह जाएंगे। तो पहला सवाल, और आप में से कोई भी इसको आंसर कर सकता है, कि अगर जैसे औरतें हैं और एक यूजुअल स्टेप होता है कि हम पढ़ लिखते हैं, फिर हमारा जॉब होता है और जॉब यूजुअली 9 to 5 होता है। तो अगर वो औरतें जो एक करियर चाहती हैं, जॉब चाहती हैं और उनका 9 to 5 जॉब है, तो क्या उसके साथ होम स्कूलिंग पॉसिबल है? अम, आप तीनों में से कोई भी, इफ दे वांट टू गो अहेड, प्लीज। All right, let me take this. So, like we said, like I had mentioned in my presentation, that homeschooling involves a lot of action, and we are trying to do. First of all, thank you so much. I think Nadia and Arshia covered a lot about to further the house of the homeschooling journey. So, I guess सबको ये idea हो गया है कि what is the work which is involved over here. So, to be very, very honest, homeschooling सिर्फ उन लोगों के लिए possible हो सकता है जहां one of the parent is taking the lead role and they are present at home to manage all of this that is, more than a full-time job. So having both parents work, I don't think it is a feasible option at all. Okay, Jazakallah khair. Can I just add something to that? mhm. So there are different, depending on आप जैसे अगर अर्शिया का जैसे सेटअप है, right, the homeschool collective, इसी तरह बहुत सारे not to disagree with Romana, but just to provide insight to alternative options. There are sometimes what they call like a co-op, where if the parents are busy, if your job has a certain level of flexibility, let's just say if it's remote, and you have a good group of a good social network where mothers, you have a co-op, you participate in a limited capacity, but you know that they are in the similar values and they offer flexibility, like other mothers basically use of homeschooling to your child in time. So I Nadia, hope समझ में आया. लेकिन yes, वो possibility is always there, but I'm afraid like then वो एक alternative school की तरह काम करेगा, and then yeah, so I mean the idea of homeschooling क्या alternative school को भी अपने अंदर लेता है, या is it about doing it Is at home? नादिया, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है. have a misconception kid, and that's fortunately not always the case, right? But yes, it is possible, but it takes a village. It's not something that, whereas Yeah. something, if you are the main teacher, अगर आप main teacher हो तो आसानी होती है आपको, but अगर आपका group है तो possible हो सकता है, but it takes उसमें time लगता है वो network build up करने. सही. तो आप तीनों ने होम स्कूलिंग किया है काफी अरसों से, और हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में कुछ भी अगर लिमिटेड कॉन्स हैं तो वो क्या है होम स्कूलिंग के? सानिया, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना हमारा का, मैं उसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगी कि आप बिल्कुल इफ यू हैव सम थर्स्ट फॉर समथिंग यू विल एंड अप रीचिंग द थिंग. तो आपको अगर सही में करना है, आप दुआ भी कीजिए और यू हैव टू सर्च अराउंड. इफ
फर्स्ट तो ये है कि हम 9 to 5 जो सिस्टम होता है वो खुद एक बहुत कन्वेंशनल स्ट्रक्चर है ऑफ लिविंग लाइफ. सो दिस इज ऑल्सो बेटर बिकॉज होम स्कूलिंग इज रियली नॉट कन्वेंशनल, इट इज अगेंस्ट द कन्वेंशनल. तो आपको उसको रीथिंक करना पड़ेगा कि इफ यू आर चूजिंग फॉर योर किड समथिंग इट शुड बी कमिंग फ्रॉम यू एज वेल. तो ये, और जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया उसको मैं ये बताना चाहूंगी. कॉन्स में बहुत सारी चीजें, सबसे बड़ी जो कॉन्स ये है कि होम स्कूलिंग इंडिया में बहुत ज्यादा देर इज नॉट a lot of education about it. So we end up thinking something about homeschooling. For example, पहले मैंने homeschooling को बहुत negatively लिया था, because I thought that we have to be closed up in a school type system in the house. But later when I found out there is a very different sort of homeschooling, like unschooling, तब मुझे समझ में आया कि ठीक है, यहाँ पर बहुत एजुकेशन बहुत कम होता है, होम स्कूलिंग को बहुत रिजिड और बहुत ही अलग तरीके से हम देखते हैं. तो ये कॉन्स में से ये है कि वी डोंट हैव इनफ नॉलेज एंड पीपल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पीपल इन इंडिया स्पेसिफिकली. एंड if somebody would like to add something. Yeah, I guess one of the biggest cons over here is lack of understanding from your circle, especially immediate circle. तो इस चीज की वजह से it can be a really isolating journey, और जो आपके struggles, like for example, I mean of course, पहले तो होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट ही बहुत नया है, और फिर जब आप खुद से ये कॉन्सेप्ट अपने बच्चों के लिए चूज कर रहे हैं तो इट्स अ नॉवेल्टी. और जाहिर सी बात है कि कोई भी नई चीज हो तो फिर बाद में द मोस्ट इमीडिएट रिएक्शन टू इट इज questionable things, this person has totally gone off bonkers and they have no clue what they are doing. तो इनका खुद का दिमाग खराब है और ये इनके बच्चों का भी दिमाग खराब करके ही छोड़ेंगी, because they are like putting them out of their traditional schooling system, which is the only recognized education system for the majority of people across the board. So this is one of the biggest challenges that a person can feel, because you are going to end up explaining and over explaining yourself. You will end up doing that because, at the end of the day, you are living in a society, you have family, you have neighbors, you have friend circle, all of that. And पहले तो there is a part of the question over here that says that there are so many ifs and buts and fears around it. And did you have fears too? To be very honest, I still remember very vividly my first week into this. So in my initial presentation, I didn't really mention, because I was really focused about, the why. For me, the emotional journey with the kids is really the key for everything. I believe as an educator also, because I teach math and English privately. And in my learning phase, like for example, even I am learning every single day. I can't even put a finger on the fact that how much self-revealing this entire journey has been. And I wouldn't change a single day for anything. I mean, of course, you would love for you to have more support. You would love the fact that, you would have a spouse who would believe and walk along the same path with you. You would love to have more resources, and, the abilities, the peace of mind, and all of that. And of course, community. Like, I mean, it's very admirable what Arshia is able to do. But I have had a very lonely journey in being able to come so far. But really, the very first week, like I said, when thankfully I was able to get connected with local groups in the previous city where I was in, and bits and pieces here and there. But
the most standing out message that I heard from any one of these prior experienced people who I spoke to, you'll figure it out. It's this answer. Okay. Yeah. I still remember like really shaking in my boots, and I'm like so alone. Nobody else, is going to believe in what I'm doing. Like, how do I go about this? So I was also focusing on the how, but really it is about the why. Just putting your kids into love of learning. Nadia also mentioned that, and that really resonated with me because love of learning and sparking a curiosity in a child. For example, let's just take the difference between a school-going kid who is a non-reader, and they have suddenly pages and reams of pages. Let's say, for example, geography, which is such a dry subject, unless a child is really fascinated by the various landscapes around the world, or physics, which are, physics, chemistry, biology, which are compulsory subjects in high school, +2. Sorry, the 9th, 10th, and high school. You're So until you're really very, very passionate about these subjects, the student, they are not going to be able to read all of that text material and be able to comprehend. And one of the most beautiful things that I learned along the journey of homeschooling is the ability for a child to comprehend what they are reading is a joy that cannot match anything else. So the most important things that I feel that I did at my embarkment on this journey was giving them the gift of reading. Thankfully, I was a reader all my growing years. And because of that, I was also kind of a misfit in my school structure, because I probably was one of two readers in my own classroom. So, there are going to be pros and cons, but if we figure out how do we gift the child, how do we create a gift of learning for the child and make them, and I have always believed in this concept of creating independent learners. Creating independent learners, and especially because of the immense resources that are available to us in today's time. 10 years ago, it would I really don't know, hats off to those people who probably did homeschooling 10 years ago. But because we are characters of this generation, the amount of resources that are available outside can only be justified if you have created a spark of learning in your child. Jazakallah. I think there was a question from the account Sajida Naik. She raised hand. She's my mother. Maybe she wants. जी आप अपना Assalamu alaikum. I'm actually your sister from your mother's Okay. account. There's some problem. I'm never able to open Zoom, so I have to connect through this. There's a thing that I wanted to ask. Like I also, just in short, that I also hated school since my childhood. I never liked. Like I didn't like the way that the uniformity, a kind of thing, which I was like अपने इसके मालिक जैसे मुझे मेरी रफ्तार से चलना है. So never did I remember that a single day that I love school. So मुझे seclusion ज्यादा पसंद था. So that's why I wanted for my kids. Alhamdulillah, Arshia is able to do it, and the place where I am, I'm able, Romana, Chise, and Nadia, I'm really inspired with you all as well, Alhamdulillah. So I was writing down, penning it down, and the points that Romana has mentioned, like it is as if I'm seeing myself in the mirror. I myself don't have that much support system, and there has been a backlash every time. So आप तीनों के जो तजुर्बे से मैंने एक चीज मार्क किया है, if I'm wrong, correct me.
कि ये जो चिल्ड्रन है इनकी एज ग्रुप्स होती है and mothers in the homeschool needs to do that accordingly, like when the kids are really Montessori age group ke hai, so maybe through different types of schooling like homeschooling definitely, so वो कर सकती है mother, it's easier, but spark तो generate कराना है, but as they grow up their syllabus, their curriculum needs to be changed and shaped, because as we know that schools system ऐसा होता है, schools में भी फर्क होता है, कुछ schools really ideal होते हैं, but due to some financial issues we are not able to enroll on feasibility और distance, ये सारी चीज होता है जिस वजह से हम नहीं डाल पाते, जैसे एक एक बच्चे को फूल की तरह तवज्जो दी जाती है एंड उनका मैक्सिमम पोटेंशियल निखारा जाता है, सो वहां से कोई चीज अच्छी हो रही है एंड स्कूल से माँ बाप और मतलब केयर गिवर्स तो एक अलग प्लेस है ना, जहाँ उनको करना ही है एफर्ट अलग अलग वे से। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बात सही है ना कि ईच मदर हैज टू डू इट इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि हर बच्चे का पोटेंशियल्स भी अलग होगा एंड सब होम स्कूलिंग कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों का क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा होगा एंड कुछ का एवरेज, इज इट पॉसिबल एंड द स्टैंडर्ड एंड द बार्स वो अपने किड्स के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा, इज इट ट्रू? और जजाक जज़ाकल्लाह खैर आपके सवाल के लिए। कोई इसका जवाब देना चाहेगा? Yeah, if nobody is going, I would love to answer this question. Sure. Okay, so Jazakallah khair, Sajida, and thank you so much for your kind words. I think I would be very interested to answer this question, especially because my kids are now, my older kids especially, are now 14 and 11. And I started homeschooling them from about, my son was, I think, just about 8-ish or something when I pulled him out of school. And my daughter, the 11-year-old, she did almost like maybe a half a year of kindergarten. So she's almost 100% homeschooled or unschooled. By the way, Arsha, it was very interesting for me to hear this term from you, also because it's not very popular even in homeschooling, communities. We are not brave enough yet to say that we are unschooling, because homeschooling itself is such a, firecracker. So yes, to come back to this question, Sajida, you are very right. पहले तो हमने ये spark create. So I think the most ideal age for a child to get started with homeschooling, unschooling journey is in their, primary years. I mean, like Nadia, I think she has a great advantage because she started the homeschooling while her kid was already a toddler, which is even more excellent. That means you already have a lot of time to refine your ideas, values, interests, and the line of education that you really want to go. But although even then, it is, it's still developing. So even the fact that पहले तो आपने ये जरूर ही करना है कि you're creating a spark of learning in your child, but then, like you said, what is the quality of education that we are able to give? So it's 100% true that each family is going to have, or each parent is going to have their extremely individualistic journey. This is a pure example of no size fits all, no, yeah. So here is where the contribution of the active participant parent comes in play. Okay, everything is about your responsibility, to be very, very honest. And you really have to have a great hands-on approach, at least in a few subjects. For example, अगर हमने और ये बात भी सही है कि don't take on too much.
like for example, when we are sending the child to the school, by default there are 6, 7 or 8 subjects which a child has to learn, and because of which, and especially because of the structure that a school follows, a child actually ends up becoming a passive learner. तो पैसिव लर्नर का बहुत इजी एग्जांपल ये है, डिस्क्रिप्शन ये है कि द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट एंड दे आर राइटिंग एन एक्सप्लेनेशन और गिविंग एन एक्सप्लेनेशन, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इट इज एब्सोल्युटली really impossible. I'm not talking about exception schools, I'm talking about the general norm of schools where the teacher, even if they may be a inspired teacher, they are not able to involve or make the student, the child, an active participant in the learning. So, but this is something that we can change as homeschooling parents. And this is, I'm a firm believer in this, that unless and until the child is able to understand what they are learning and why, they cannot involve themselves in the learning journey, then again it becomes like, you're replicating the school in your house. And I saw a homeschooling parent, or this is probably, a very propagated statement also, don't replicate the school in your home, then there is no meaning attached to it. So my theory over here is that you as a parent needs to become really involved and evolve yourself along the child's journey. So today when I see my children, and the best part about it is that what is this word, the interlocutors यानी कि बहुत ज्यादा गुफ्तगू जो आपके बच्चों की होने वाली है वो आपके साथ ही होने वाली है, बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारे सवालात, ये सारे होने ही वाले हैं, एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और जब ये सारी सवालात होंगी or discussions hongi, then you are able to figure out, and this actually happens, it's really very easy. So I have seen the transition of my kids from 8, 9, 10, where they have been more quieter individuals, and I would be like, mashallah, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चे बात सुनते हैं और पढ़ाई कर लेते हैं, स्टोरी बुक्स ला कर दो तो फिर बहुत सारा वक्त उनका पढ़ाई में चला, रीडिंग में चला जाता है, and you are setting your curriculum. And then one fine day, everybody started talking. Both my son and my daughter, Amin, and they are talking so much. They are like questioning every single thing. And you have to give a why for everything that you choose and everything that you don't choose. So this is where the transition of the family and thought processes start happening. कि और तब आपको आपके बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी समझ में, आपके बच्चों का कैरेक्टर भी आपको समझ में आना शुरू होता है, because it is very easy to guide or navigate a child who is still, your child's entire compass, still they are at a very naive age. But then once they are a little bit older, and this is exactly why we are homeschooling, like Arshi also very beautifully said, creating Muslim leaders, this is it's almost like a thought which is so close to my heart, and nobody can translate this for you. And you won't be able to translate this thought to anybody else outside also. So there is no other way other than you evolving yourself. You really need to. Sorry, I just want to add this. I'm really sorry. That हम देखते हैं अगर क्या पुराने जमाने में जो माएँ थी, हम तो फिर भी बहुत ऐसे टाइम पर रह रहे, हमारे पास मशीन्स है, हम कपड़े धोने हैं झटपट हो जाते हैं। एक टाइम था जब हम लोगों को एक जमाना था जब इमाम अल गजाली की माँ होगी, वो बहुत बिजी होती होगी, दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, कटिंग, ब्रिंगिंग वुड, और आई डोंट नो एग्जैक्टली वो दौर का, लेकिन उससे पहले हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को हम अगर देखते हैं तो मुश्किलात तो होती है और हर किसी की अलग अलग चीजें होती है, लेकिन इल्म के लिए बैरियर जो आज बन गया वो नहीं होता था। दे वांटेड टू हैव अन उस्ताद फॉर देयर किड्स, एंड जैसे आप कह रही हो ना कि एक एज ग्रुप, मेरे एज ग्रुप शायद आई एम जस्ट इन
अंडर 7 year olds के लिए मैंने बहुत रिसर्च की, बट एज माई सन हु इज नाउ 9 टर्न्ड ग्रू, तो मैंने सोचा कि उसके लिए मुझे उस्ताद लगेंगे, उसके लिए मुझे एक्सपर्ट्स लगेंगे। और फिर उसके लिए आपके पास बहुत सारी ऑनलाइन भी ऑप्शंस होते हैं, इफ यू कैन अफोर्ड। There are a lot of beautiful courses which you can choose for yourself, subjects which you can choose. Like there are a lot of websites and a lot of things going on. अभी फिलहाल बहुत सारी resources है। उसके अलावा even if you don't have enough funds, I think we can still go and talk to people who are experts in their fields and just ask, I want my kid to learn mathematics from you. I think you're very good at it, and things like that. This is how I feel is going to work for everyone then. मतलब finances भी कोई issue नहीं होंगे. You just have to know the concept of ilm is through an expert who will take care of our kids, and who's not just expert, who's also a very good person by like in heart. तो हम ये दो क्राइटेरिया देखते हैं जरूर हमारे बच्चों के लिए, जो स्कूल्स में हमारे पास इतनी प्रिविलेज नहीं होती चूज करने के लिए, कि हमारी टीचर्स जो बच्चों के साथ 8 घंटे स्पेंड कर रहे हैं वो कैसे है, वी डोंट नो देयर थॉट प्रोसेसेस, व्हाट काइंड ऑफ illness, diseases of the heart they may have. So this is also a big point for me. When I thought, no, I will never think of, I did try. मैंने अपने बच्चों को बहुत दफा बहुत प्रेशर, सोशल प्रेशर जैसे आप कह रही थी, ये बहुत होता है कि ये लोग मस्ती कर रहे हैं, बच्चों की लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, दिस एंड दैट। बट या, if we are sure about what we want and we are very sincere, inshallah we end up in good hands, for our kids as well, inshallah. Inshallah, definitely. Yeah, should we wrap up this session because we have exceeded our time, or जो हम लोगों के साथ सुन रहे हैं, क्या would you like कि हम लोग और कुछ questions discuss करें? अगर आप चैट ग्रुप में अपनी राय लिख दें तो अच्छा होगा। एक सवाल ये था कि हुमैरा इज थिंकिंग आउट लाउड कि औरतों पे बहुत जिम्मेदारी होती है घर के चोर्स की, काम के, और इसके साथ कहीं होम स्कूलिंग ऐसा तो नहीं है कि उनका जो शेयर ऑफ द बर्डन है वो डिस्प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, या उनमें ज्यादा उन पे एक तरह का केयर गिविंग का वो आ रहा है। But I think most of the people who do choose it because they think it is feasible, but we would love to hear from the panelists. I think this, just to understand, could you rephrase? आप question एक और बार बोल सकते हैं? Is it like? Chat group पे लिखा हुआ है हुमैरा का सवाल कि होम स्कूलिंग जो है केयर गिविंग बर्डन को क्या औरतों के थोड़ा सा और बढ़ा देता है, क्योंकि औरतों पे ऑलरेडी काफी केयर गिविंग के बर्डन है। Well, I mean, yeah, like, okay, so just सिर्फ अगर आप कंसिडर करें कि यस, अगर आपका नॉर्मल जो डे टू डे लाइफस्टाइल है उसमें आप एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर रहे हैं, एंड अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हुए हैं तो नॉर्मली आई गेस नॉर्मल लोगों को, नॉट नॉर्मल लोग बट जो एवरेज हाउस होल्ड हैं उन माओं को 6 to 7 hours की, आई वुडंट से ब्रेक, बट एक विंडो मिलती है आपकी चीजें Yeah. राइट। I just remember, sorry Nadia to interrupt you, but I'm not able to restrain myself from this little bit of a joke that I have seen, where a child, there's a mother who goes to drop her kid to the school, and the child suddenly turns around and tells her, "Ja maa, जी ले तू अपनी जिंदगी अगले 6-7." Yeah, so I guess burden इस तरह आप honestly I will go back to your spouse, right? कि आपका ना, आपके spouse, आपके बच्चे as a family unit आप एक conscious decision बना रहे हैं, और एक reality है कि आप एक इंसान सुपर ह्यूमन तो नहीं होता है, somewhere along the line इम्प्लोजन हो जाएगा, राइट? अगर एक इंसान पे इतना ज्यादा बर्डन हो
तो जो मेरे जानने वाले हैं जो होम स्कूलर्स हैं एंड इन बाय एंड लार्ज जो होम स्कूलिंग कम्युनिटीज़ हैं, इट्स अ फैमिली अफेयर इन द सेंस कि आपका जो स्पाउस है और आपके जो बच्चे हैं इन सम कैपेसिटी उन लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग है कि ओके ममा इज़ नॉट अ रोबोट, ममा ऑल्सो हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, उनका भी हेल्थ मैटर करता है। एंड आई थिंक बच्चों में ये चीज़ें इनकलकेट करना स्पेशली बॉयज़ आई थिंक छोटी उम्र से बहुत ज़रूरी है एंड हैविंग द फादर्स also step in and help a little in terms of like या आपकी expectations उनको थोड़ी minimize करनी होंगी या कहीं ना कहीं help करना होगा because definitely yes अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं and आप सारे subjects आप ही पढ़ा रहे हैं तो for sure और कोई help नहीं है I mean like no maid, no whatever, no any, no cook. So obviously, yes, थोड़ा feel तो होगा for sure. But अगर आप वो plan हाँ करेंगे, like there's a saying, right? अगर if you fail the plan, then you plan to fail. And I think वो बहुत relevant है इस मामले में कि आप थोड़ी सी planning बहुत दूर जाती है, whether it be meal planning या घर की सफाई या जो भी है, and then आपकी family को involve करें उस चीज में कि कहीं ना कहीं आपको वो relief मिले. That's true. That's absolutely true. I would add, Tanya, there is a little thing, Erica Commissar, if you go through, the one who's asked this question of mother's role and things like that, it will become a burden. It does look like it will become a burden because हम जो तरीके से आज fast paced living है जिसमें both the father and the mother has to have the income and things, it has become difficult. But still, this is an author, psychoanalyst and parent guidance expert. वो अभी एक बहुत अच्छी चीज है वो like this is very close to my heart what she talks is that you know this has become a very difficult time when motherhoods especially जो बहुत important formative years होते हैं हमारे बच्चों के उस वक्त जब माएँ बिजी होती है it creates long lasting impact in the lives of the kids in the individual's life तो ये बहुत जरूरी है कि we especially being the follower of Sayyidi Rasulullah Sallam, we have to go through motherhood, like, you know, कि क्या हम सही में for the sake of maybe we can talk with our husband that, you know, I for some years I take a break and then take care of the kids. And I'm not telling कि हमें उसके वजह से हम सारी ट्यूशनिंग हमारे बच्चों की करें, लेकिन अगर हमारा जॉब इतना मुश्किल है कि हम हमारे बच्चों के लिए we don't have courses designed for them or maybe things like happening in a place at home और maybe we don't have exposure trips हम नहीं कर पा रहे अगर हफ्ते में एक दिन भी तो जरूरी है कि हम फिर से देखें मदरहुड को समझे कि ये कितना important impact create करता है and also fatherhood after 7 years we need fathers also to be in the kids life so we have to also go to the experts who are now telling that women please don't give up on your you know special years of with your child just because of the mainstream conventional method we have set for ourselves so this is what I would like. Definitely, this requires some thinking and rethinking. Jazakallah khair, Arshia, for sharing that. कोई और सवाल किसी का जहन में अगर कुछ है तो आप just you can speak it out loud. The whole idea is कि अगर आपके कोई भी तरह का सवाल है हम लोग आराम से उसको डिस्कस कर सकें. It doesn't have to be just like a specific kind of सवाल, but it can be a controversial one as well. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. It's an open discussion. So, yeah. If not, I would like to thank बहुत बहुत शुक्रिया नादिया, रोमाना, नर्शिया आपने अपने इतने बिजी रूटीन से ये वक्त निकाला कि आप बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकें. We are very, very thankful from team Muslim Women's Studies Circle. Thank you for joining and imparting अपनी
एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। जस्ट बिफोर वी लीव, एक हमारा जो अपकमिंग सेशन है, वी आर ऑलवेज ब्रिंगिंग समथिंग जो थोड़ा सा हटके है, एंड आई लाइक टू इनवाइट हुमैरा कि वो कुछ शब्द उसके बारे में बोल सके। इट्स अबाउट